हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। जो नंबर्स होते हैं उसको हम इंडियन सिस्टम में किस तरह से लिखते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से लिखते हैं वो आज हमें देखना है। यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है इंडियन सिस्टम, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो में हो चुका है, तो आप फर्स्ट वीडियो उसके लिए देख लीजिएगा कि इंडियन सिस्टम किस तरह से उसका। इस वीडियो में हम थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे, लेकिन जो आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। In both the system, last 5 places are same, like 1, 10, 100,000 and 10,000। ये पांचों प्लेसेस आपको इंडियन सिस्टम में भी दिखेंगी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी दिखेगी। बट आफ्टर दैट 100,000, million, 10 million and 100 million are the different places. Okay? In Indian system, this 100,000 is read as lakh. It is read as lakh. And million thousand it is read as 10 lakh. 10 million is read as crore. And 100 million is read as 10 crore. 10 crore. Okay? This is the basic difference between the Indian system and international system of numeration. Nowadays, few examples of that. Question 1 is that insert the commas according to international system of numeration and write the number name in words. Okay? यहाँ पर जो नंबर गिवन है उसमें हमें कॉमास इंसर्ट करना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड राइट द नंबर और उसका हमें नंबर नेम भी लिखना है। So first we learn about this number. So put this number into the given table from last. Here is 1, 2, 9, 6, 5, 4 and 3. Okay? Here we put the numbers into the given table. Now we have to insert commas and write down the number name. And already I told you the commas are inserted according to its periods. According to its periods. So let's see. These three numbers are in the ones period. That means we have to insert a commas after these three digits. So we write this number given to be here or here. In the answer we write the same number 3, 4, 5, 6, 9, 2, 1. Now insert comma. First one, last digits. Here we insert comma. Next, after one period there is a 1,000 periods. In 1,000 periods, how many are there? 1, 2, 3. Okay, here the 1,000 periods is over. So insert the commas after this number. Now 3 is remain. Now write down the number name. इसका क्या लिखना है अभी हमें? नंबर नेम लिखिए। ये समझ में आएगा आपको कॉमर्स किस तरह से इंसर्ट किया हमने। we insert commas here according to its periods and places. In the ones period there are 3 digits or 3 positions or 3 places, hence we insert commas here first after from last 3 digits. In the next 3 digits contained in the thousands columns, hence we insert here again after 3 digit comma. After there is no digit as it is. हमें क्या करना है इंटरनेशनल सिस्टम में हर एक 3 डिजिट के बाद कॉमा इंसर्ट करना है। नाउ 3 is present here in which column? Millions column. So write here 3 million. Sorry. So we write here 3 million 4 किस कॉलम में है? 100,000 के कॉलम में। किसके थाउजेंड में है? 100,000। सो राइट हियर 3 million 4 100,000 3,400,000
Then after 10,000 and 1,000. 10,000 means 50,000 and 1,000 means 6,000. 50 plus 6, 56,000. Okay. So right here 56,000. 56,000. 56,000. And after that 9 is present in the hundreds column and 10 is present tens column, 2 is present here at the tens column and 1 in the ones column. So 2 and 1 is the 21 and 9 is present at the hundreds position. So right here 900 21. In this way, we have to insert a commas according to international system of numeration and write its name in the international system of numeration. So, read the given number is there. What is the given number is there? 3,400,056,921. Okay. According to the table, we have to insert commas and write down its number name. Now, look at example number 2. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 digits are given here. Now we have to insert commas and write down its number name into the international system of the digits. 2, 3, 0, 0. Again 0, 2, 7 and 5. Now insert the commas. 5, 7, 2, 0, 0, 0, 3, 2. First after one spirit after 0, that means we have to insert commas here, 1 comma. Then after this period, it is there 2. First 3, then second 3 digit. Now read the number. Here is a 10 is present at 5 is present at 10 million column and 7 is present at millions column. So 10 millions, that is a 50 and 7 millions is a 7. So 50 plus 7 is a 57. Okay, 50 plus 7 is a 57. So right here 57 million. Right here 57 million. 57 million. Then 100,000. 100,000 column में कौन सा नंबर है? 2. So right here 200,000. Next, in 10,000 column there is no digit. 0 is there. In 1,000 column there is also 0. 100 there is also 0. Then what is the remaining numbers are there? In the tens column there is 3 and ones column 2. So 3 tens means 30 plus 2 is what is there? 32. So right here 32,000 हो गया आपके पास 32. Find this one, where to write down the number name. So let the given number, it is read as 57,200,032. It is read as 57,200,032. So in this way we have to write down the number name in the international system of numeration and insert comma. What happens if the question is given in words and we have to write down in numbers? Now look at the questions here. These questions are given in the इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. यहाँ पे जो नंबर नेम्स हमारे पास गिवन है वो किसमें है? इंडियन सिस्टम में गिवन है. इसका हमें न्यूमरल फॉर्म में लिखना. वर्ड राइट डाउन इट्स न्यूमरल फॉर्म इन
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, किसमें लिखना है उसको? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है। नंबर 1 33,55,041। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे? 33,55,041। सबसे पहले देखिए ये कॉलम जो हमने बनाया है बॉक्स, वो किसके लिए होता है? इंटरनेशनल सिस्टम के लिए होता है। बट आई एम मेंशनिंग हियर इंडियन सिस्टम नेम आल्सो। ओके, 1 to up to 10,000 इन इंडियन एंड इंडियन सिस्टम बोथ द प्लेसेस आर सेम। यहां तक सभी प्लेसेस क्या है? सेम है। इन इंडियन सिस्टम जो लाख की प्लेस होती है उसको हम यहाँ पे रीड करते हैं इंडियन सिस्टम में 100,000, और जो 10 लाख पोजीशन होती है उसको हम रीड करते हैं मिलियन। करोड़ की पोजीशन को हम रीड करते हैं यहाँ पे 10 मिलियन, और 10 करोड़ की पोजीशन को रीड करते हैं यहाँ पे हम 100 मिलियन। सो हमारे पास इंडियन सिस्टम में हमने लिखा है नंबर्स, और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखा है। सो इंसर्ट देयर नंबर्स। व्हाट इज देयर फर्स्ट? 33 लाख, इधर 10 लाख and lakh questions, so right here 33, correct? 30 यहाँ पे हो जाएगा 30 plus 3, it is 30 lakh plus 3 lakh. How many then we get here? 33. So like we write here 33 lakh. Now next 55,000. यहाँ से तो आप सभी को पता है किस राइट करते हैं। So insert their numbers 55,000. We write here 55,000. Then 41 बोला हुआ यहाँ पे, लेकिन 100 की पोजीशन है क्या कोई भी यहाँ पे? नहीं है। जिस नंबर में किसी नंबर की अगर पोजीशन गिवन है तो वहां पे क्या लिखना है? हमें 0 इंसर्ट करना है। देन व्हाट इज द 41? राइट हियर 41। तो इस तरह से हमने इस नंबर को यहाँ पे जो नंबर वर्ड्स में था उसको लिखा है हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के फॉर्म में। सो राइट डाउन दिस नंबर 335,041। अब इसमें क्या करेंगे? हम कॉमन सेट कर लेंगे। फर्स्ट फ्रॉम 3 डिजिट अगेन आफ्टर 3 डिजिट। सो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लुक एट द अदर 3 क्वेश्चंस। 69,765। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम गिवन है, उसमें सिर्फ आपको ये नंबर्स इंसर्ट करना है और यहाँ पे राइट करना है। और राइट करने के बाद क्या करना है? हमें उसमें कॉमा इंसर्ट करना है आफ्टर एवरी 3 डिजिट। ओके, हर 3 डिजिट के बाद हमें वहां पे कॉमा इंसर्ट करना है। और जिस नंबर की पोजीशन इस नंबर में गिवन नहीं होगी उसके जगह पे क्या लिखना है? हमें 0 राइट डाउन करना है। ओके, सो एग्जांपल 2, 3, 4 इज अ होमवर्क फॉर यू। 2, 3, 4 is homework for you. It is a homework for you. Now let's take one more example. Suppose I have one number is there 4,92,398. It is a given number 4,92,398. ये नंबर मेरे पास गिवन है, इसको लिखना किसमें? अभी मुझे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो क्या करेंगे? हम जो भी नंबर है उसको पहले लिख लेंगे। क्या है यहाँ पे? 4,92,398 लिखा हमने यहाँ पे नंबर्स। अभी उसमें क्या करना है? हमें कॉमा इंसर्ट करना है आफ्टर 3 डिजिट्स। फर्स्ट आफ्टर 3 डिजिट, देन उसके बाद 3 डिजिट से हम ये पे उसको स्टॉप कर देंगे। ये हो गया कॉमा इंसर्ट किया हमने उसको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। अब उसको हम रीड करेंगे। तो लेट द 4 इज प्रेजेंट हियर ऑन विच पोजीशन? 100,000 पोजीशन। सो इट इज रीड एज 400,92,398. It is read as 400,92,398. इस तरह से आपको अगर नंबर वर्ड्स में रहता है, सॉरी अगर आपको नंबर्स गिवन रहता है उसको कॉमा इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट आपको इस तरह से कॉमा इंसर्ट करना है, बाद में उसको वर्ड्स में लिखना है। ओके, और सेकंड क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा। नंबर्स जो है, नंबर नेम जो आपको इंडियन सिस्टम के हिसाब से गिवन रहेंगे उसको आपको लिखना है
न्यूमरेशंस में, तो फर्स्ट उसमें आप बॉक्स में उसको इंसर्ट कर लीजिए और बाद में उसको राइट कीजिए। सॉल्विंग द एक्सरसाइज, डोंट ड्रॉ बॉक्स एट एवरी टाइम। हर समय आपको ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पेंसिल से जो भी नंबर गिवन है उसको सिर्फ इस बॉक्स के नीचे आपको ड्रॉ करना है, बाद में उसको इस कर लेना है। सपोज मेरे पास ये नंबर गिवन है 3 9 5 4 3 2 1, ये नंबर मेरे पास गिवन है। इसका मुझे क्या करना है, इंसर्ट द कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड राइट डाउन इट्स नंबर नेम्स। अगर हमें ये डायरेक्टली रीड नहीं करना आता है तो क्या करेंगे, हम उसको इस बॉक्स के साथ रीड करके देखेंगे। आपके पास पेंसिल है, सो जस्ट इंसर्ट द नंबर्स बिलो दिस गिवन टेबल। फर्स्ट क्या है 1, देन 2 3 4 5 then 9 and again 3। देख लिया अभी हमने, तो इसमें कॉमन इंसर्ट करना है। तो कॉमन तुम्हें पता है किस तरह से इंसर्ट करके, आफ्टर 3 डिजिट फिर अगेन आफ्टर 3 डिजिट हमने कॉमन इंसर्ट कर लिया। अभी उसमें क्या लिखना है, उसको वर्ड्स में लिखना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। नाउ चेक 3 is present in which column here, million column, 3 million 900,000 54,321। again look here, 3 is present here in the millions column, 9 is present in 100,000 column, and 5 is present at 10,000 column, 4 is present here at 1,000 column. After 100, tens and ones. So read the given number 3,900,054,321। इस तरह से उस नंबर को हम रीड करते हैं और राइट करते हैं। क्वेश्चन से दैट इंसर्ट कॉमास एंड राइट नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, उसको क्या करना है, हमें फर्स्ट उसमें कॉमा इंसर्ट करना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड देन राइट डाउन इट्स नंबर नेम इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, बाद में उसका नेम भी हमें लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से। सो फर्स्ट दिस 3 एग्जांपल्स इज होमवर्क फॉर यू। अब इसमें दिस नंबर 4, ओके। So just take an example number 4. How many are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. How many are there? 8 digits are there. Now insert commas. We know in the international system we insert commas after every 3 digits. So insert 3 digits again after a 3 digit. After write down its number name. So जो आपके पास बॉक्स गिवन रहेगा उस बॉक्स के नीचे आप पेंसिल से आपने इस नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए। तो हम इसको नोट डाउन करते हैं 1 4 5 6 3 0 0 एंड 7। नोट डाउन कर लिया। अभी क्या लिखना है, उसको वर्ड में लिखना है। सो चेक करो 7 किस कॉलम में है, 10 मिलियन की कॉलम में है, ओके। 7 is present at 10 million column, that means it is a 70 million. Then 0 million के कॉलम में, so 7 0 कितना हो जाएगा 70 million. So right 7 और 0 दोनों किसी कॉलम में आ रहे हैं, मिलियंस के कॉलम में आ रहा है, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे हम 7 0 कितना होता है 70। so right here 70 million 70 million। दे 100,000 के पास कौन सा नंबर है, 0 है, तो हम उसको कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। दे लुक एट द 10,000 पोजीशन एंड 1000 पोजीशन। 10,000 there is 3 means 30,000 plus 6 plus 30 plus 6,000, how many thousand there is 36,000। so right here 70 million 36,000 36,000। Now after 6,000 what is there? 5 is at which position? 100 position। so right here 500
500 4 1 means 41. 41. So the given number is read as 70,36,541. So the given number is read as 70,36,541. In the similar way, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 is homework for you. आपको सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर है उसको पहले एज इट लिख लीजिए, देन इंसर्ट कॉमास आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स. उसके बाद जो टेबल आपके पास गिवन रहेगा उसमें आप उसके नीचे डिजिट्स को पुट डाउन करिए बाय यूजिंग पेंसिल. एक क्वेश्चन का ऐसा हो गया, बाद में उस नंबर्स को इरेज कर लीजिए और उसका अकॉर्डिंग टू टेबल उसका नेम हम लिख लेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 2, अगेन आप दोगे होल नंबर एंड देन उसी नंबर्स को हमें इस टेबल से उसको लिखना है और उसको बाद में उसका नंबर नेम लिखना है अकॉर्डिंग टू टेबल. वो चेक कैसे करोगे आप कि नंबर्स वो किस नंबर पे किस बॉक्स में आ रहा है, उसको अकॉर्डिंग टू आप उसको नंबर नेम लिखना है. So thank you guys, it is all about for today's lecture. Some few questions is homework for you. वो क्वेश्चंस आपको नोट डाउन में करना है और ये जो भी पूरा क्वेश्चन आपको अभी तक पढ़ाया है वो सब क्वेश्चन आपको आपके नोट डाउन में बुक में नोट डाउन करना है. थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे.